Yes. English. Leisure. Okay. Leisure. Writing skills. Arts. So yesterday, children, yesterday it was revised. Okay. So have you learned? Have you understood the poem? What is the theme of this poem? Children, what is the theme? What is the central idea of this poem? What? That our life is poor. The poet says that, children, the central idea or the theme of this poem is that our life is poor, our life is dull, our life is meaningless, our life is tasteless because we have no time, because we have no leisure, and to spend it on watching nature, natural happenings, natural phenomena, natural scenes, natural beauty. Yeah, morning children, good afternoon, children. So leisure is a very significant poem, is a very important poem written by W.H. Davis. Written by W.H. Written by Yes. So we have a lot to enjoy our nature, enjoy enjoy our leisure. We should spare our time. We should not be busy. We should not be busy, madly busy, always busy at our work from morning to evening. We are, but we are. Yes, hearts. Let us write hearts, children. Yes. Poem, leisure, revision is going on and we are going to write hearts, life skills, okay, values, etc. We are going to discuss. You must know how to write them, okay, and then writing skills also. Yes. On a sheet, roll number, those who are present. Yes, right. Roll number of all the students 6A. Well, hearts. Hearts. Higher order thinking skills. Higher order thinking skills. The phrase "no time" has been repeated in the poem. Why has it been repeated? एक फ्रेज को नो टाइम बार बार आया है ना पोएम में, देखो तो नो टाइम, नो टाइम, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउस, नो टाइम टू सेव, नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स पास, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस. अब कंटिन्यू रहिए. ब्यूटीज ग्लैंस. No time to wait till her mouth can. Right, children? So this phrase "no time" has been repeated. What is the phrase? What is the phrase? No time. Why has the poet repeated this phrase in this poem? It means he is laying emphasis. वो जोर दे रहा है, वो दबाव दे रहा है इस फ्रेज पर, जिसका मतलब है कि इंसान के पास समय नहीं है, इंसान के पास फुर्सत नहीं है, इंसान के पास अवकाश नहीं है.
वो व्यस्त है मशीन की तरह, वो एक टूल बन गया है। इंसान क्या बन गया है बच्चे आज? वो एक टूल बन गया है। सुबह से शाम, फिर शाम से सुबह, बाप रे बाप, हद हो गई। क्या हो गई है? एक्सेस। इट इज एक्सेस। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। यस, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज, थैंक यू सर, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, राइट? यस, so children, we should avoid any excess in our life. Recording कर रहे हैं ना? हाँ, this is why we should avoid any excess in life, and we should enjoy life, because life is the best gift. Children, see, life is the best gift. Life is the best gift given to us by Almighty God. Life is the best gift given to us by Almighty God. So we should enjoy it. रिकॉर्डिंग का to the fullest. आया होगा, 1 मिनट सर। हाँ, आ रहा है। Yes. So we should enjoy life to the fullest. To the fullest. Now, come on, thoughts. So children, आप भी लिख सकते हैं। ये थिंकिंग स्किल्स है, डेवलप करो इस स्किल्स को। ओके, तुम भी बनो राइटर, तुम भी बनो नॉवलिस्ट। इसका रोल नंबर इससे नहीं पता, मुझे क्या बना रहे हैं? 50 कर दो, 50, 50, 50। The poet has repeated. Yes, the poet has repeated. सर बोलेंगे तो कुछ नहीं। उस दिन का रोल नंबर है, ये 19 का था। 19 वाला है, तो ये तो शायद मैं कर ओके थैंक यू। यस, द पोएट हैज रिपीटेड दूसरा क्या होने लगा? सर फिर से लिखे। यस, मट्टी कैसे लगे? सर को आने दो। उड़ा मट्टी लगे कैसे क्या होता है? बार बार लिखोगे तो नया ढंग होगा लिखने का। माइक बंद करो अपना। यस, या नो टाइम बिकॉज़ कैसे भी रहा म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए, सर सबको म्यूट कर दीजिए, सर सबको म्यूट कर दीजिए। क्या? सर सबको म्यूट कर दीजिए। अच्छा सबको म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। म्यूट कर दीजिए। म्यूट कैसे किया जाता है? सर ये लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं, इनको म्यूट कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिएगा। म्यूट कैसे किया जाता है? रुको, हाँ, पार्टिसिपेंट, यस, म्यूटेड ऑल। हाँ रुको, परमानेंट कर दो, या परमानेंट हो गया। यस, द पोएट has repeated the phrase no time because he puts special, देखो दूसरी तरह से लिखा गया, स्पेशल emphasis मतलब जोर देना, या स्पेशल emphasis that man doesn't have leisure or time to watch and enjoy nature. Enjoy nature
and natural objects. What is meaning of Yeah. objects? His life is poor. His life is Poor. and dull. Because Yes, sir. he has become a tool. टूल में क्या होता है बेटा? औजार, औजार। मशीन बन गया है. Okay, Yes, sir. he has become a machine and keeps busy. Busy In our life. In our life. throughout. Ah. So he should spare time. Sir, can you again repeat the meaning of He should spare time. जल्दी लिखोगे, दूसरा भी करना है. He should spare time. Sir, can you again repeat the meaning of emphasize? Emphasis. Yes. Yes, sir. EMPHASIS. Yes. Emphasis. Spare time. Spare time. And watch. Sir, what is meaning of Watch birds, insects, creatures, at or playing their sports. Creatures playing their sports on the lap of nature. In nature. Okay. That's all? Yes, done. This is how. Values. Value. Now values. Values point out the beauties of nature that can be source of pleasure for man in his days. Yeah, come on, write faster, children. बोर्ड इज क्लियर. तुम लोग कंप्लेनिंग करना बंद करो. द बोर्ड इज क्लियर. इट इज क्लियर. या
लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स, सेकंड क्वेश्चन। नंबर 3, लाइफ स्किल्स। Thoughts. And third question is life skills. Life skills. Children, जीवन कौशल, इसको हिंदी में बोलेंगे जीवन कौशल। यस, मतलब कौशल का मतलब होता है टेक्निक। टेक्निक्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किल्स? क्या नाम है जी? खड़े हो जाओ तो तुम दीवार में घुस जाओगे क्या? इधर मास्क लगाओ। हाँ, और इधर उधर क्या ताकते रहते हो? गर्दन इधर से उधर चमकाते रहते हो। सिट क्वाइट, लुक एट द बोर्ड एंड आस्क मी क्वेश्चंस। या चिल्ड्रेन, skills are techniques and they make our life comfortable. Okay, they are very important in life because if we have skills we can do various things in our life. We can do our work more easily and in less time. More easily and in less time. अगर आपने अच्छा, आपको आपसे कहा जाए कि आप एक कुर्सी बना दीजिए, चेयर बना देंगे? क्यों? क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है। आप कारपेंटर को बोलेंगे तो वो बना देगा। क्यों? वो स्किल्ड है, वो जानता है। तो लिखना भी एक स्किल है। राइटिंग इज ऑल्सो स्किल। राइटिंग इज ऑल्सो स्किल। तो लाइफ में हम लोग स्किल सीखें। देखो क्या स्किल्स है। स्किल ये है, स्किल इसको कहते हैं कि आप किसी को एक कपड़ा देते हैं, कोई आकार नहीं है ना? एक कपड़ा दे दिया, अब दर्जी टेलर क्या करता है? खूब सुंदर शर्ट बना के आपको दे देता है। ये स्किल का प्रोडक्ट है। ये क्या है? स्किल का आउटकम। ये देखिए स्किल से बना है, ये बोर्ड स्किल से बना है, ये किताब स्किल से बनी है। तो अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप क्या हैं? एकदम रॉ। आप एक मिट्टी के ढेले हैं, आप एक सड़क पर पड़े हुए पत्थर हैं। अगर आपको स्किल नहीं आता है तो एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? इसलिए स्किल को मास्टर करो। स्किल को मास्टर करो। स्किल को कमांड करो। है बीच में रहो, पीछे यासी का नाम बदलवा लेना। सब नाम मुझे पसंद। Why do people in cities normally face shortage of time? Very good. भाई लोग कहते हैं समय नहीं है। अरे भाई समय क्यों नहीं है? आप क्या करते रहते हैं? रोज पहाड़ तोड़ते हैं क्या? नो सर। कि आप कहते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है। हम क्या करें, है ना? इतना बिजी है। लेकिन क्या रियली वी आर बिजी इन टाउन्स एंड सिटीज? समय को बर्बाद करते हैं। या वेस्ट। Many people waste their valuable time. A lot of people simply waste and misuse their precious time. This is the reality. तो हमें क्या करना चाहिए? टाइम बचाइए, टाइम को ठीक से यूज कीजिए। आप प्रोडक्टिव मैनर में उसको हम लोग क्या करें? यूटिलाइज करें। प्रोडक्शन में अच्छी चीज़ों को प्रोड्यूस करें। सड़क बनाएं, गली को साफ कर दें, मंदिर को साफ करें,
अपने घर को साफ रखें, प्रोडक्टिव वर्क है, स्कूल का काम करें, स्कूल का काम करें, पेड़ पौधे लगाएं, प्रोडक्टिव वर्क है, काटते ये प्रोडक्टिव वर्क है। घर में बच्चों के लिए अच्छे भोजन पका दें, सबसे अच्छा प्रोडक्टिव वर्क, क्योंकि भोजन खाएंगे, अच्छा भोजन खाएंगे तब ना हम हेल्दी रहेंगे, यस सर, और हेल्दी रहेंगे तो लाइफ में कुछ भी करेंगे हम। या सो is all the work they are busy doing productive? No. Yes. Why do people in cities normally face? Normally people in the cities and towns